Hello students, now once again I am Mitra from LPM School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now we are going to start a new chapter and that chapter will be parabola. Till now we have studied about the straight line. In conic section we have covered two topics, straight line and circle. Now we are going to cover about our next topic and that will be parabola. So in parabola, what you would like to understand first, how the shape changes. Such as in class 10 we have studied about the class 10 linear equation. That linear equation in the form of ax plus b. And in class 11 also we have studied about the straight line, and we know that if a function or if a polynomial of degree 1, if a polynomial has a degree 1, then it means that the graph of this polynomial will always be a straight line. If a polynomial is of degree 1, then graph of this polynomial will always be a straight line. Now, if I would like to tell you, in last year, class 10, you also studied about the graph of x square. The graph of x square, and in the relation function chapter also, I have taught you about the graph of x square. The graph of x square varies in a U shape, and that U shape means that for every polynomial which have a even degree, every polynomial which has an even degree means even power, that will be in the form of U shape. For every even degree power. And for a linear function, you will always have a straight line. And for power 3 or power odd function, you will have some zigzag motion, or you can say some snake type motion. Some snake type curve you will find, and you will see that in the later portion. Now we will deal about some x square portion. So parabola are 4 types. These are 4 types. I will explain you each. Firstly, let us start with the y square equal to 4ax. Y square equal to 4x is the form of parabola, and it's identified like this. And suppose we have a curve like this. But the very first thing I would like to mention that this is the x-axis, this is x dash, this one is y, and this is y dash. Now this curve touches the y-axis, and it intersected the x-axis. And it has a symmetry in x-axis. x-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है इस कर्व के द्वारा, ठीक, या इस कर्व को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है x-axis के पॉजिटिव साइड में, ठीक। तो हम लोग इससे क्या समझेंगे, x है, ये x डैश है, इस कर्व की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y को टच करता हुआ y स्क्वायर 4ax, x में सिमेट्री है, पॉजिटिव साइड सिमेट्री है 4ax, इस साइड होगा नेगेटिव साइड होगा तो -4ax आता है, ठीक। ओरिजिन पे पास हो रहा है इसलिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक। ये सारी कंडीशन समझेंगे धीरे-धीरे। अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, क्या, एक होता है फोकस पॉइंट, ठीक। फोकस पॉइंट का मीन क्या है, फोकस पॉइंट और एक लाइन होती है जो ये डिस्टेंस होगी, सपोज की जगह ये डिस्टेंस है, इधर की इतनी दूरी पे a कहीं होगा और इसका कोऑर्डिनेट होगा -a, 0, ठीक। इस लाइन को हम सीधा प्रोड्यूस करते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है ये, ठीक। कैसे होता है डायरेक्ट्रिक्स, जितनी दूरी पे फोकस होगा, ओरिजिन से जितनी दूरी पे फोकस होगा उतनी ही दूरी पे नेगेटिव साइड में, अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ये नेगेटिव साइड, अगर ये पॉजिटिव साइड फोकस था तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन नेगेटिव साइड बनती है, ठीक। मतलब अगर डायरेक्ट्रिक्स फोकस पॉइंट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा नेगेटिव साइड बनेगा, ठीक। अगर फोकस पॉइंट हमारा नेगेटिव साइड होता तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा पॉजिटिव साइड होता, ठीक। अब ये x इक्वल टू -a मींस इस लाइन की हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -a, ठीक।
x इक्वल टू माइनस। एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है कि इस कर्व के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेना, P पॉइंट ले लिया और यहाँ पे फोकस से ये दूरी मेजर कर लिया, ठीक, ये FP दूरी, FP जो डिस्टेंस होगी इस P पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस डायरेक्ट्रिक्स पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S, ठीक, SP इक्वल टू FP होता है, SP इक्वल टू FP का रिलेशन हमें मिलता है। FP के जब तक इक्वल होता रहेगा एक कर्व जो बनेगा उन सारे पॉइंट्स को मिला के जो कर्व फॉर्म होगा उस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक। FP इक्वल टू FP यदि हो रहा है, SP इक्वल टू FP यदि हो रहा है, कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए इस कर्व के ऊपर, कहीं भी कोई पॉइंट ले ले, ठीक, उससे यदि ये रिलेशन फॉलो होता है हम लोग कह सकते हैं कि उन सारे पॉइंट्स के कांटेक्ट कराने पे जो कर्व बनेगा उसे कहते हैं अपन पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला, ठीक। और समझते हैं, अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग निकाल के देखेंगे। ये लाइन है x इक्वल्स टू -a और इसी लाइन को मैं लिख सकता हूँ x प्लस a इक्वल्स टू 0 और इसी लाइन को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 0y प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक। अब समझेंगे इसके क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम लोग। और ये P कोई पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं x, y, ठीक, कि x, y कोई कोऑर्डिनेट था और ये फोकस पॉइंट है और ये भी a दूरी पे है, तो डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ दिस डिस्टेंस SP distance can be calculated by the help of equation of line। ये लाइन की इक्वेशन है और ये अपना कोई कोऑर्डिनेट है, ये लाइन की इक्वेशन है, कोई कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका हमने सीखा था स्ट्रेट लाइन। किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का पैटर्न हमने सीखा था। कैसे सीखा था हमने सीखा था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड में d इक्वल्स टू b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका था। सपोज वी हैव a point xy, we have a particular line and we need to find the perpendicular distance from this point on this line. So how we will calculate the SP distance? SP distance will be calculated by the formula of the straight line d equals to ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. By this method we can calculate the perpendicular distance. So how much this distance will be? The distance will be calculated. Then x coordinate we have coefficient of x as 1. So value of a will be 1 into x coordinate x1. x1 is our given point. So this is x. So 1 into x plus by1. b 0 into something will always be a 0 plus c. Value of c will be a plus a upon under root of a square plus b square. The value of a is 1 and value of b is 0. So this will be square root of 1 equals. Now this SP equal to FP. The FP distance will be equals to square root of. Let me grab this portion. The FP distance will be equal to square root of x minus a whole square plus y minus 0 whole square y square. Now for solving this we have here 1 into x equal to x, 0 into y 0 plus a equals to square root of x minus a whole square plus y square. And on solving this
On removing this square root, you will have squaring both sides. You will find x plus a whole square. X plus a whole square equals to x minus a whole square plus y square. And on solving this, you will find the equation y square equal to 4ax, which will be our required result. Y square equal to 4ax. So what we have done, we have formed a particular figure by taking any of the points on this figure, we can find a particular relation, and that relation combines all these particular points, and that sequence of this particular point is called a particular name, is called a parabola. And how this relation will be defined? That will be defined in the form of y square equal to 4x. What was our relation? That relation is that this distance will be equal to this distance. This distance will always be equal to this distance. If you are taking any point, anywhere, this distance will be equal to this distance. If you are taking anywhere, this distance will be equal to this distance. So, what was our relation? अगर फोकस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट ले लें हम लोग, उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स है, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो ये दूरी परपेंडिकुलर वाली और ये दूरी हमेशा आपस में इक्वल होगी. ठीक, तो वो हमने देखा, यहाँ P नाम दिया, एक फोकस पॉइंट था, P नाम दिया, यहाँ S नाम दिया, SP इक्वल टू FP मिला. SP इक्वल टू FP मिला तो क्या मिला? D इक्वल टू ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था. ये लाइन कौन सी होगी? ये x के ऊपर कांस्टेंट की लाइन है, तो x इक्वल्स टू माइनस a की लाइन बन जाएगी. x इक्वल्स टू माइनस a कैसे लिख सकते हैं? माइनस a को इधर ट्रांसपोज किया, x प्लस a इक्वल टू 0. और कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 0y प्लस a इक्वल टू 0. ठीक, यहाँ से ये फॉर्मूले को पुट किया, ax1 a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ x का कोफिशिएंट ही a कहलाता है. x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है. 1 into a प्लस 0 into y. ये x और y कहाँ से आया? ये x y का गिवन पॉइंट होता है. ठीक, प्लस a प्लस कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू FP. FP कितना होगा? ये डिस्टेंस जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर. अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, x प्लस a और ये ऐसे ही स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए. स्क्वायरिंग करते ही x प्लस a का होल स्क्वायर इतना आ गया प्लस y स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x मिल जाएगा. ठीक, ये एक तरीका हो गया पैराबोला को डिफाइन करने का. पैराबोला की इक्वेशन कहाँ से निकल के आती है. ठीक, हम लोग थोड़ा और समझते हैं. ये पर्टिकुलर पॉइंट लिखा था मैंने, ये था a,0 मींस फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0. वर्टेक्स इसको बोलते हैं. इस पॉइंट क्या होते हैं? वर्टेक्स. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0. और इसे क्या होता है? फोकस के कोऑर्डिनेट. इसे क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन. डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ठीक, ये कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था. इस फोकस पॉइंट पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो पैराबोला के दोनों एंड को टच करे. सपोज करें यहाँ P था, यहाँ Q बनाते हैं, तो QP जो डिस्टेंस होगी, QP डिस्टेंस हम बोलते हैं लेटस रेक्टम. QP डिस्टेंस को बोलते हैं लोग लेटस रेक्टम. मींस फोकस पॉइंट पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए जो कि पैराबोला के दो एंड पॉइंट को टच करे. पैराबोला के दो एंड पॉइंट को टच करे. इस लाइन के डिस्टेंस को बोलते हैं लेटस रेक्टम. इस लाइन के डिस्टेंस को बोलते हैं लेटस रेक्टम. If a perpendicular is dropped on the focus point of a parabola, that line or this distance is called the latus rectum of the parabola. This distance is called the latus rectum of the parabola. So some more things.
क्या वर्टेक्स पॉइंट क्लियर हो गया, फोकस पॉइंट क्लियर हो गया, लेटस रेक्टम क्लियर हो गया, ठीक। एक जो इक्वेशन थी हमारी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इक्वेशन थी हमारी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। इस 4x को समझना है, इसमें y स्क्वायर लिखा है मीन्स y एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा होगा, y स्क्वायर लिखा है मीन्स y एक्सिस को टच करता हुआ क्या होगा, ठीक। 4x या 4ax में 4a जो डिस्टेंस होती है ये होता है लेटस रेक्टम, जो 4a की डिस्टेंस होती है यही होती है लेटस रेक्टम, जो 4a की डिस्टेंस है वो लेटस रेक्टम होती है, मीन्स ये ऊपर 2 है ये नीचे 2 है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी लेटस रेक्टम 4a, लेटस रेक्टम होती है 4a, ठीक। जो a के कोऑर्डिनेट है, जो a अकेला है, a अलोन इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट, जो a अलोन होगा उसे क्या बोलते हैं फोकस पॉइंट, a अलोन जो होगा उसे क्या बोलेंगे फोकस पॉइंट। तो और x लिखा है पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव x है, नेगेटिव साइड में होगा तो नेगेटिव x है, पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव x है, नेगेटिव साइड में होता तो नेगेटिव x है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4x, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको दिखे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, नेक्स्ट टाइम जब भी दिखे आप समझ सकते हैं कि y एक्सिस को टच करता हुआ x में सिमेट्री रखते हुए एक पैराबोला ड्रॉ किया गया है, ठीक। इस पैराबोला में y को टच कर रहा होगा, 4a लेटस रेक्टम है, a जो है फोकस है, x पॉजिटिव है मतलब x की साइड में सिमेट्री है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब सपोज करें हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा मीन्स क्लियर है कि a की वैल्यू क्या है 1 है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, 0, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा -a, 0 मीन्स -1, 0, ठीक। लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4a, 4, ठीक। Similarly, you can solve the rest of the things. Now, about the rest of the 3 parabolas, we will discuss tomorrow. Today we have some kind of disturbance. That voice is already not clear to you. I hope. So till that, keep on enjoying and keep on solving all the questions. Thank you.